हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार. माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑन दिस करंट अफेयर मॉड्यूल ऑफ 7th जून. दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर करंट अफेयर नीड्स फॉर योर CLAT examination, and not just about your current affair needs but also for your logical thinking, for your ability to understand and decipher the world around you. दोस्तों, in this particular module we try to cover all those important issues which are connected to the national news item as well as international news item. Wherever there is a good possibility of connecting historical dots, we try and put those points into context for you. Let me start with this today's agenda. The first topic, which is after election, when there are coalition which are taking place. So coalition में हर एक group अपना अपना कुछ demand करेगा. Yes or no? So there is a demand which is coming up from JDU. JDU says please conduct caste survey. आपको याद होगा, ठीक है, बिहार was the only state which conducted caste survey. Now you may wonder, sir, what is the meaning of caste survey? So let me ask you, what is the difference between a word called census and what is the meaning of the word called survey? दोस्तों, census is for the entire population. The counting of the full population is known as census, while survey takes place for the sample of the population. पूरे population में से एक part का जो you can say डेटा निकाला जाता है, that is known as survey. So बिहार में कास्ट सर्वे हुआ. ये कास्ट सर्वे वॉज वेरी क्रूशियल बिकॉज वहाँ से ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी कास्ट डोमिनेंट है, ठीक है, और उन कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन रखा है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, ठीक है. तो JDU was very popular because of caste survey, so they are demanding that. Another demand which is coming up from Bihar and UP and the varieties of the other place is review this Agnipath scheme. So I'm sure you are aware that there is Agnipath scheme. अग्निपथ स्कीम जब भारत में लॉन्च करी गई तो बहुत सारी जगह पे इसके बारे में प्रोटेस्ट होने लगे, बिकॉज अग्निपथ स्कीम इसलिए लाई गई थी दैट द आर्मी or the defense, you can say the entire defense sector of the country should not be burdened with large number of people, ठीक है, और उनको जिंदगी भर पेंशन दे देना है, तो वो एक तरीके से फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है डिफेंस सेक्टर के ऊपर, और इसकी वजह से अग्निपथ स्कीम लानी पड़ी थी. अग्निपथ स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये था दैट दे आर गोइंग टू रिक्रूट पीपल, द यंग पीपल, दे आर गोइंग टू keep them with themselves for a few years, which is to the tune of 5 to 6 years, and then they will get retired, and then they can start their own journey. They can join Indian economy, Indian, you can say, industries, and they'll contribute there, and then that's where the relationship between the government and those people will end. Thereby there is no burden on the government, ठीक है. पर दोस्तों, अब ये सब लोगों को डिमांड लग रहा है कि मतलब ये तो गलत बात है, क्योंकि हम अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, हमारा पूरा गांव आपके देश के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है. तो ये तो एंगर है लोगों के मन में, तो गलत बात है कि भैया ये रिक्रूटमेंट स्कीम को बदल दीजिए, ऐसा उनका कहना है, ठीक है. सो वो सच काइंड ऑफ थिंग्स जो भी डिमांड अब आएगी, है ना, जो NDA गवर्नमेंट के ऊपर, हम देखते रहेंगे, ठीक है, हम उसके बारे में सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, एंड दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि भैया लोगों की डिमांड क्या क्रिएट हो रही है. दोस्तों, भारत में ये पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक है. भारत में पहले भी बहुत बार कोalition गवर्नमेंट बनी थी, और कोalition गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग तरीके के यू कैन से डिमांड आते थे. पर जो सबसे क्रूशियल डिमांड आज के समय पे चल रही है, उसके बारे में बात करना बिल्कुल वाजिब है. दोस्तों, नीट का एग्जाम कंडक्ट हो गया, और नीट की एग्जाम में नीट यूजी की बात चल रही है, ठीक है, और नीट यूजी का रिजल्ट आया, और रिजल्ट में करीबन 69 स्टूडेंट्स गॉट टॉपर, 720 आउट ऑफ 720, ठीक है. there are 704 students, they are topper from only one center. मतलब that looks really problematic, ठीक है, that looks really problematic. Another issue
है। 720 में से 720 आएगा, ये पक्का है। एक क्वेश्चन के 4 मार्क होते हैं, ठीक है, गलत करने का 1 मार्क कटेगा। सो अगर किसी के मार्क्स आ सकते हैं, द नेक्स्ट बेस्ट मार्क वुड बी इधर 716, क्या या तो बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ दिया है, ठीक है, तो 716 या 715, ये दो ही आ सकते हैं। 718, 719 पॉसिबल नहीं है। हाउएवर इस साल एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, दोस्तों ये ध्यान रहे, हमने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डेवलप करी थी प्राइमरली देश में ये बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने के लिए। और जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाएगी ये बॉडी, वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है, ये पर्पस के साथ इसको हमने चालू किया था, ठीक है। अब क्योंकि इस बार, है ना, पेपर कुछ कुछ जगह पे अच्छी तरीके से हुआ नहीं, और इसकी वजह से कहीं पे ग्रेस मार्क देने की ज़रूरत पड़ी, और वो ग्रेस मार्क की वजह से कुछ लोगों का 718, कुछ लोगों का 719, इस तरीके के मार्क्स आए। 718, 719 मार्क्स आने की वजह से, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एंड नॉट जस्ट दिस, ठीक है, पर ऐसा तो कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे लोगों को 720 आउट ऑफ 720 आ जाए, और सब जगह पे इसका हल्ला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात को तो रिफ्यूज कर दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू पुट अ स्टे ऑन एनटीए रिजल्ट, ठीक है। हाउएवर वी आर ओपन टू द आइडिया दैट द नीट कैन बी रिकंडक्टेड, कैन बी, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर कोई जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट करेगा कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या, अगर ये प्रूफ मिल जाए कि ऐसा गलत हुआ है तो ये री एग्जाम होगा। ध्यान रहे, प्रूफ मिलना जरूरी है। सिंपली ये बात बोलना कि दैट इट इज इलॉजिकली वेरी हाई नंबर ऑफ टॉपर्स, ठीक है, दैट इज नॉट सफिशिएंट प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट को अगर नीट की एग्जाम रिकंडक्ट करवानी है, देन इट रिक्वायर्स प्रूफ बियॉन्ड एनी एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो ये प्रूफ चाहिए कि कहीं ना कहीं एग्जाम में गलती हुई है, ठीक है, एग्जाम में गलती हुई है, ये होना, ये और ये प्रूफ करवाना बिल्कुल जरूरी है। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए बढ़िया। एक और स्कैम भारत में आ रहा है, नीट स्कैम, सब बात कर रहे हैं, ठीक है, और नीट स्कैम के अंदर एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, ठीक है, इसका रिजल्ट आने वाला था जून 14 को, और इन्होंने इस रिजल्ट को बहुत जल्दी लेकर आ गए जून 4 को, ठीक है। जून 4 को रिजल्ट आ गया, विच वॉज अलॉन्ग विथ द इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है, और शायद इनकी बातें दबाने के लिए करी जा रही है। अब तो ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलेगी ना, ठीक है। सिमिलरली वन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी which is coming up is Rahul Gandhi is blaming on the ruling party, that is BJP, that जून 4 का जो स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ, इट वॉज अ स्कैम। स्कैम क्या है? स्कैम ये है कि जिन जिन कंपनियों के शेयर प्राइसेस से नीचे गिरे, उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में ये जो बीजेपी, उसको पता था। बीजेपी ने जानबूझ के अपनी ही पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने वाली मीडिया को बोला तुम एग्जिट पोल रिलीज करो, और वो एग्जिट पोल रिलीज करने वाली जो न्यूज़ चैनल्स है, वो न्यूज़ चैनल आर ऑल्सो ओन्ड बाय दी कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। और उन्होंने वो पोल रिलीज करा, एग्जिट पोल रिलीज करने में मार्केट एकदम ऊपर उठ गया ऑन 3rd of June, and then 4th of June ये मार्केट एकदम क्रैश हो गया, एंड देयर बाई दे आर एबल टू अर्न लॉट ऑफ मनी, ठीक है। कॉमन पीपल का करीबन 30 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया, ठीक है, ऐसा उनका कहना है। हाउएवर कैन से अपोजिशन ये बोल रहा है कि इट इज़ अ बेसलेस एलिगेशन। राहुल गांधी का कहना है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बिठाई जाए और उसका प्रोब किया जाए, विच में बी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, विच में बी वेरी इंपॉर्टेंट गिवन द सिनारियो कि भारत में एक समय पे मीडिया वॉज फ्री, इंडिपेंडेंट ऐसा माना जाता था, पर आज ज़्यादातर मीडिया इज फुल्ली इन कंट्रोल बाय दोज बिग कॉरपोरेट हाउसेस। और ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, अदानी, अंबानी, इनके हाथ में ये मीडिया हाउसेस है, और ये मीडिया हाउसेस की वजह से, है ना, उनके हाथ में जो मीडिया हाउसेस है उनकी वजह से दे आर एबल to, you can say, share those kind of information which may impact stock market, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है भारत देश के लिए, भले ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सके, पर एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आई है
कि किस तरीके से मीडिया को हम इंडिपेंडेंट रख पाए, ठीक है, किस तरीके से मीडिया को हम इंडिपेंडेंट रख पाए और मीडिया कंपनी का जो ओनर है, ठीक है, वो ओनर को बेनिफिट ना हो, उसके लिए किस तरीके के प्रिंसिपल्स हम डेवलप कर पाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा डेवलप हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूआंसेस, है ना दोस्तों। आर्टिकल नंबर 19 बोलता है फ्रीडम, और उसमें आर्टिकल नंबर 19(1)(a) बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के द्वारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के द्वारा मीडिया, दैट इज न्यूज चैनल, दे डिराइव देयर पावर टू रिमेन फ्री। सो वॉट एवर दे वॉन्ट टू शेयर, वॉट एवर दे वॉन्ट टू से, दे शुड। पर दोस्तों वो जो फ्रीडम है, फ्रीडम शुड ऑलवेज कम विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस और नो। तो ये जिस तरीके से कुछ बिजनेसमैन अपने हाथों में मीडिया खरीद लेते हैं और उस मीडिया के द्वारा इस पूरे मार्केट को घुमाते हैं, तो ये एक बिल्कुल एक ऐसे वाजिब इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इसको ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। राहुल गांधी ने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को रखा, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये पॉसिबली एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही रह जाए तो अच्छी बात है, पर एक मौका तो ज़रूर मिला है कि ऐसा स्कैम फ्यूचर में ना हो, उसका ध्यान रखें, ठीक है। The news which is coming from international, you can say, forum, which is once again Israel and गाजा का लड़ाई, ठीक है दोस्तों। एक गाजा हॉस्पिटल में करीबन 37 लोगों की मौत हो जाती है। एक एयर स्ट्राइक किया जाता है इजराइल की तरफ से, ठीक है, विच इज UN रन स्कूल थी है ना, UN रन स्कूल, जहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अटैक कर दिया, है ना, जहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्स बोलता है कि हमास के लोगों को आपने यहाँ पे रखा है ना, हमास के लोगों को आपने यहाँ पे रखा है। सो गाजा हॉस्पिटल सेज दैट 37 किल्ड इन स्ट्राइक ऑन UN स्कूल, है ना, दैट्स वेरी क्रूशियल, ठीक है। अब दोस्तों इसके साथ ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने डेवलप हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये पूरा जानकारी रखना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी टॉक अबाउट दी स्पेन का इशू, है ना, क्या इशू क्रिएट हो रहा है स्पेन की तरफ से, इस बात को हम अगर समझे, ठीक है, तो स्पेन ने इजराइल के खिलाफ, हिस्टोरिकल पॉइंट है दोस्तों, स्पेन मेड अ रिक्वेस्ट, ठीक है, टू ज्वाइन अ केस एट, यू कैन से, यूनाइटेड नेशन कोर्ट विच इज नोन एज ICJ, वहां पे उसे ज्वाइन करने का बोला, ठीक है दोस्तों। ये केस किसने इनिशिएट करा था? द केस वॉज इनिशिएटेड बाई साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका इनिशिएटेड दिस केस अगेंस्ट इजराइल लास्ट ईयर। उनका एक्यूजेशन ये है कि इजराइल इज ब्रीचिंग, यू कैन से, जीनोसाइड कन्वेंशन। क्या केस है उनके खिलाफ? जीनोसाइड कन्वेंशन को, यू कैन से, इजराइल ब्रीच करता है बाई मिलिट्री एक्शन इन गाजा, ठीक है। द कोर्ट विच इज इन्वॉल्व इज नोन एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विच इज हेग में बैठी हुई है, द हेग, विच इज नीदरलैंड्स, ठीक है। इजराइल वॉज ऑर्डर टू हॉल्ट इट्स मिलिट्री ऑफेंसिव इन राफा बट नॉट अ कंप्लीट सीज फायर, ठीक है। इजराइल ने अभी तक उस बात को कॉम्प्लाई किया नहीं है। राफा में उसको रोका था कि भैया राफा में तुम रुक जाओ, पर वो रुका नहीं है। स्पेन ने कहा कि भैया ये तुम गलत कर रहे हो, जो अभी तुम्हारा मिलिट्री ऑपरेशन गाजा में चल रहा है, विच इज़ नॉट रियली ओके। स्पेन सिक्स टू सपोर्ट पीस एफर्ट इन गाजा एंड द मिडल ईस्ट, ठीक है। जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज साहब ने कहा, ठीक है, कि उनका मूव इज वेरी मच अलाइन विद द, यू कैन से, द सोशलिस्ट गवर्नमेंट दैट दे आर फॉर्मिंग। रिमेंबर, ना सिर्फ स्पेन से, है ना सिर्फ स्पेन से रिक्वेस्ट करी गई थी कि आप हमारे साथ केस में ज्वाइन करिए। देयर आर फ्यू अदर कंट्रीज विच वर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन। वन ऑफ देम इज कॉल्ड मैक्सिको, ठीक है, अदर इज कोलंबिया। इनसे डिमांड करी गई थी कि आइए हमारे साथ केस में ज्वाइन करिए। निकारागुआ, ठीक है ना, निकारागुआ, क्या बोलते हैं इसको, निकारागुआ, लीबिया एंड पैलेस्टाइन, ठीक है, ये इंक्लूडेड है दोस्तों, ठीक है। नाउ स्पेन इस केस में ज्वाइन होने से स्पेन का फायदा क्या होगा, ठीक है। स्पेन वुड बी एबल टू मेक रिटन सबमिशंस and participate in public hearing in the ICJ. Remember, in the recent time, Spain
नीदरलैंड्स, याद है आपको, नॉट नीदरलैंड, सॉरी नॉट नीदरलैंड्स, नॉर्वे एंड आयरलैंड, ठीक है। उन्होंने 28 मई को उन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया था दैट पैलेस्टाइन इज अ सेपरेट स्टेट, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज कंडेम्ड द हमास अटैक्स एंड सपोर्टेड डिमांड्स ऑफ द रिटर्न ऑफ इजरायली हॉस्टेजेस, ठीक है। तो एक तरीके से वो इजराइल की बातों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, पर इजराइल जो गलत काम कर रहा है अभी, ठीक है, वो सही बात नहीं है, ठीक है, वो सही बात नहीं है। स्पेन इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू सीक टू ज्वाइन साउथ अफ्रीका के साथ इस गाजा केस में। मल्टीपल कंट्रीज आर ऑल्सो गोइंग टू इन्वॉल्व एंड दे आर गोइंग टू गेट सपोर्ट पॉसिबली, ठीक है। स्पेन्स एक्शंस दे रिफ्लेक्ट देयर ब्रॉडर डिप्लोमेटिक कमिटमेंट एंड स्टांस विथ रिस्पेक्ट टू पीस इन मिडिल ईस्ट, ठीक है। दैट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट विच वी शुड बी अवेयर अबाउट। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर इंपॉर्टेंट इशू, इसके साथ आपको एक बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। भारत में करीबन एक से अलग अलग स्टेट्स में, आपको पता होगा हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो होता है, ठीक है। जैसे सेंटर पे, ध्यान रखना, सेंटर पे है ना, ये हम बात कर रहे हैं स्टेट की, सेंटर पे 2 हाउसेस है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। बाई कैमरल मतलब पार्लियामेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बाई कैमरल। देर आर 2 हाउसेस, देर आर सो मेनी स्टेट्स इन द कंट्री दैट दे हैव 2 हाउसेस, so many states, legislative assembly and legislative council, okay, and there are so many other states they have only one house which is called legislative assembly, okay. So please tell me, ऐसे कितने स्टेट है इंडिया में जिनके पास 2 हाउसेस है? सेंटर के पास तो 2 हाउसेस है ही, साथ में आपको ये भी थोड़ा सा ढूंढना है मेरे लिए कि प्लीज बताइए कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने एक से स्टेट्स में होता है, ठीक है। 28 स्टेट में से कितने स्टेट्स में है? ये बात हो रही है कर्नाटका में। कर्नाटका में लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन आया और उस इलेक्शन में सभी के सभी 11 कैंडिडेट्स हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड, ठीक है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स बीजेपी, कांग्रेस, है ना, सभी पार्टी के अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो सूरत जैसा गलत काम हुआ नहीं था। सूरत में जो अनकंटेस्टेड अनअपोज्ड से बंदा सिलेक्ट हो गया था, मतलब इलेक्ट हो गया था, ठीक है ना, मुकेश दलाल करके भाई साहब का नाम है, ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत हो गया था, ठीक है। अब वो तो धज्जियाँ उड़ा दी थी रूल्स रेगुलेशंस की, पर अब क्या करे, उसके बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं। पर यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोई गलत बात हुई नहीं है। चलिए फटाफट बता दीजिए कितने स्टेट्स है जहाँ पे 2 हाउसेस है, क्विकली बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हम आपके सामने आज उजागर करने की कोशिश करेंगे। एडिटोरियल पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो दैट, यस और नो। पर एडिटोरियल में जब हम चीज़ें पढ़ते हैं तो हम किस नज़रिए से हमारे मन में एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टम बना दे, ये हमारे लिए बड़ा क्रूशियल है, ठीक है। सिस्टम और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे मन में उस पूरे पैराग्राफ का एक लॉजिकल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने उस लॉजिकल डेवलपमेंट का तरीका प्रेजेंट करूंगा। आज मैंने एक न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल उठाया है ना, उस आर्टिकल का हेडिंग है बिजार जजमेंट, वेरी वियर्ड जजमेंट, ये उसकी बात, उसका बारे में बात है, ठीक है। तो हम आपके सामने इस पूरे पैराग्राफ का लॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ वो प्रेजेंट करेंगे। इसके पीछे ऑथर की एजम्पशंस क्या है वो बताएंगे। ऑथर इनमें से जो बताया उसमें से क्या क्या इन्फरेंस हम डिराइव कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों के साथ ऑथर अग्री कर सकता है और कौन सी चीज़ों के साथ ऑथर डिसअग्री कर सकता है, एंड देन फाइनली व्हाट कुड बी अ समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज प्लीज पिक अप this particular article from newspaper, this is taken from the Hindu, और उसका मैं आपके सामने एक लॉजिकल डेवलपमेंट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये जजमेंट आ रहा है इन से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट था विच इज़ अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। दोस्तों एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है, क्या बात हुई है ना, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। एक इंटरफेथ कपल था, दैट इज आदमी मुस्लिम था और जो औरत थी वो हिंदू थी। उन दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा शादी करने का कहा,
ठीक है, एंड देन दे सेड कि वी आर मैरिंग। कोर्ट ने कहा कि दिस इज रियली रॉन्ग, यू कैन नॉट डू इट, है ना, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज आपके मतलब आप में से जो भी मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा है, जैसे यहाँ पे कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक आप जो शादी कर रहे हो, ठीक है ना, वो जो रिचुअल्स है वो आपने सही तरीके से फॉलो नहीं करे। तो अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जाना चाहते हो, ध्यान रखना, अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहते हो तो ये पक्का इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके पर्सनल लॉ के मुताबिक जो रिचुअल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा भी आपकी शादी मान्यता नहीं मिलेगी। सही है, यह हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और इस जजमेंट के ऊपर ये पूरा आर्ग्यूमेंट डेवलप हो रहा है। आर्ग्यूमेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? आर्ग्यूमेंट का फॉर्मेशन सबसे पहले ऑथर दे रहा है विथ एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ही सेज प्रिंसिपल ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से लीगल पार्ट कॉल्ड ignorance of law is no excuse, and ignorance of law is not only applicable to the offenders but also to the judges। वहां से उन्होंने बात चालू कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि क्रिटिसिज्म क्या बेसिस पे आया? क्रिटिसिज्म इस बेसिस पे आया दैट स्पेशल मैरिज एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन हुआ या जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे हाई कोर्ट की वो अंडरस्टैंडिंग गलत है। ठीक है, अब ये समझा रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट किस वजह से बनाया गया। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट का पर्पस था इंटरफेथ मैरिजेस को कोई रिलीजियस रिचुअल्स के दायरे में न फंसाकर उसको एम्फेसाइज करे कि इंटरफेथ मैरिजेस आसानी से फैसिलिटेट हो पाए। ठीक है, लोग आसानी से इसके शादी कर पाए। सो कोर्ट ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर फोकस किया, ना कि स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर फोकस किया, तो इसकी वजह से उन्होंने एक से मुस्लिम पर्सनल लॉ को ज़्यादा अहमियत दे दी और एक से जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको इररिलेवेंट बता दिया। जो कपल के काउंसिल थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट दी थी दैट स्पेशल मैरिज एक्ट शुड ओवरराइड द पर्सनल लॉस। सही बात है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल स्पेशल मैरिज एक्ट का पर्पज ही ये चालू हुआ था, स्पेशल मैरिज एक्ट का पर्पज ही ये शुरू हुआ था कि भाई आप, है ना, इंटरफेथ कपल को एक से शादी करवा पाए। द जज का रैशनल अबाउट prohibited relationship under SMA is discussed and it is refuted as a misinterpretation। ठीक है दोस्तों, हर रिलीजियन में एक प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है और प्रोहिबिटेड मैरिजेस होते हैं। जज ने उस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का नाता देकर, उसका वास्ता देकर बोला कि भैया इस पर्टिकुलर चीज की वजह से आई एम सेइंग दैट दिस मैरिज कैन नॉट बी वैलिड। ठीक है, the judgment is portrayed as an imposition of religious personal law on a secular marriages। Remember, special marriage का पर्पस क्या है? इंटरफेथ मैरिज, so that will be treated as a secular marriage। अब उस सेक्युलर मैरिज के ऊपर पर्सनल लॉ थोप देना तो गलत बात है। ठीक है, सो कंसिक्वेंसेस क्या है? इसके कंसिक्वेंसेस है ब्रॉडर। ठीक है, और इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत तो पड़ रही है। ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट का फ्लो समझ में आया? एक प्रिंसिपल बताया, उस प्रिंसिपल किसको अप्लाई होगा वो बताया, और बाद में क्रिटिक किया। क्रिटिक क्या ग्राउंड पे करा वो मैंने आपको समझाया। ये सुनो, अब ये सब आर्ग्यूमेंट करने के लिए क्या क्या एजम्पशन चाहिए था? एजम्पशन था पहला, द इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल टू जजेस, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज द पर्पस ऑफ SMA? ठीक है, और SMA दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट किसको ओवरराइड करेगा? बोला पर्सनल लॉ को ओवरराइड करेगा। ठीक है, और सेक्युलर लॉज का प्रेसिडेंस होता है। ये महत्वपूर्ण एक से एजम्पशंस आपके सामने क्रिएट हो रही है। समझ आ रहा है आपको? है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। ये 4 एजम्पशंस है और इसकी वजह से ऑथर के साथ हम इस बात के साथ सहमत हो सकते हैं कि ऑथर ये इन्फर करवाना चाहता है हमसे, हमको ये कंक्लूड करता है ऑथर कि जो SMA दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन हुआ वो गलत हुआ।
और उसमें उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई जब स्पेशल मैरिज एक्ट होता है तो वहां पे पर्सनल लॉ यू कैन से इररिलेवेंट हो जाता है, और इस तरीके के जजमेंट विल डेफिनेटली अंडरमाइन द पर्पस एंड द एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, और इसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत पड़ रही है, और ऐसे जजमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हिंडरेंस पैदा करेंगे। और ऐसी क्या बातें हैं जिसके साथ हम एक से ऑथर के साथ अग्री कर सकते हैं? ऑथर के साथ हम ये अग्री कर सकते हैं कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक है, वो एक क्रूशियल लॉ है, वो देश में सेक्युलर मैरिज अलाउ करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सिस्टम है, नंबर 1। नंबर 2, ऑथर ऑल्सो सपोर्ट्स द लीगल फ्रेमवर्क, है ना, दैट अलाउज दिस सेक्युलर लॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड विच ऑल्सो इंक्लूड्स द मैरिज, ठीक है। एंड देन ऑथर ऑल्सो अग्रीज ऑन वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि देश में लीगल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लॉज का इंटरप्रिटेशन कंसिस्टेंट होना चाहिए, जज जो उसको इंटरप्रेट करे सही तरीके से करने के काबिल होने चाहिए। कुछ कुछ एरिया में ऑथर के साथ, है ना, ऑथर कुछ बातों में डिसएग्री कर सकता है। ऑथर ये बोल सकता है कि इम्पोजिशन ऑफ रिलीजियस पर्सनल लॉ इन द केसेस ऑफ सेक्युलर लॉ इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑथर ऑल्सो डिसएग्रीज विद द जज का ओवर, यू कैन से ओवर रीच। जज एक ओवर रीच करता है जब अपना एक इंटरप्रिटेशन, अपना एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कोई जजमेंट में दे दे, एंड देयर बाय author also opposes the interpretation that undermines the purpose and the utility of special marriage act. So in summary, this article critiques, remember it is critic, evaluate कर रहा है कि ये बता रहा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो जजमेंट रहा, that is a misapplication of Muslim personal law in the case of special marriage act. The correct application of SMA could be allowing in the interfaith marriages without any kind of religious constraint. The broader implication of this interpretation on a secular law and uniform laws are discussed here, and the article also asserts that judges should have a proper understanding of law while interpreting it. ठीक है, चलिए, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने यहाँ पे क्रिएट हुआ। आगे बढ़ते दोस्तों, हम बात करेंगे, है ना, लोकसभा का जो 18th जनरल इलेक्शन कंप्लीट हुआ उसके क्या महत्वपूर्ण डेटा हमारे पास आए। सबसे महत्वपूर्ण डेटा है कि इस बार जो टर्नआउट रहा विच वॉज 65.79% वोटर टर्नआउट रहा। लास्ट ईयर दैट इज 2019 में ये था 67.4% का टर्नआउट था। दिस वॉज अ डेटा ऑफ 2019, दिस इज अ डेटा ऑफ 2024, सो थोड़ा सा कम रहा। हाउएवर, India recorded highest voter turnout in the world during the recent Lok Sabha election. कितने नंबर आए? 642 million voters, ठीक है। And when we compare it with other regions, so सभी G7 group of countries को इकट्ठा कर दे, ठीक है, उनका जो वोटर काउंट है उसके 1.5 टाइम्स इंडिया का वोटर काउंट रहा। और जो भी 27 यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है उसका जो टोटल वोटर है उनके सामने इंडिया के वोटर हो गए 2.5 टाइम्स। दैट्स अ ह्यूज, ठीक है। एंड सेम इज द केस व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन वोटर्स इन इंडिया, देवर 312 मिलियन वुमेन वोटेड, विच इज सरपासिंग नंबर ऑफ वुमेन वोटर इन ईयूज मोस्ट रिसेंट नेशनल इलेक्शन। सबसे ज़्यादा जो यूरोप में हुए विमेन इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, उसमें इंडिया का एजेंसी इंडिया ने क्रॉस कर दिया। एल्डरली पीपल, है ना, जो लोग 85 की एज के भी ऊपर है, दे शोड नोटेबल पार्टिसिपेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे आर गिविंग इंस्पिरेशन टू यंग पीपल। देयर आर यंग पीपल हु आर शोइंग एपैथी टूवर्ड्स इलेक्शन, सो दे शुड नॉट शो एपैथी, दे शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, ठीक है। एक और इलेक्शन कमीशन ने बात रखी दैट देयर वर रिड्यूस्ड रीपोल्स। व्हाट डू यू मीन बाय रीपोल्स? रीपोल का मतलब होता है कि कभी इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में उस इलेक्शन के प्रोसेस में गलती हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे वापस रीपोल करना पड़ा। किसी ने आके बूथ कैप्चर कर लिया, किसी ने वहाँ पे गलत तरीके से वोट कर दिए, है ना, कुछ गलत काम हो गया, ठीक है। तो ठीक है, देयर वर ओनली 39 रीपोल्स compared to 540 in 2019। 2019 में 540 रीपोल हुए थे, मतलब नॉट 540 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 540 बूथ पे,
यू अंडरस्टैंड, कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करके बूथ बनाए जाते हैं, और कोई बूथ में गलत काम हो गया, ठीक है, तो वहां पे ये इलेक्शन की बात हो रही है. आउट ऑफ 39 रिपोल्स 25 रिपोल्स occurred in just 2 states. So मतलब it is a problem in certain area, certain geographical area. It is not a problem of Election Commission of India. वैसा जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रहा, ठीक है, और इलेक्शन इंटीग्रिटी अच्छी तरीके से मेंटेन करी गई. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो एस्टेब्लिश हुआ, उसके द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, है ना, बड़ा अच्छा काम हुआ, ताकि लोग अपने मसल पावर को न दिखा सके, अपने मनी इन्फ्लुएंस को न दिखा सके, मिस इन्फॉर्मेशन न दे, ठीक है. इसकी वजह से इस बार 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा दैट दे हैव रिकॉर्डेड अ सीजर ऑफ 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपयों का उन्होंने कैप्चरिंग किया, क्योंकि वो पैसा जा रहा था गलत कामों के लिए. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको रोक दिया. कितना? 10,000 करोड़. दैट्स अ ह्यूज नंबर, दैट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है. पर इन्होंने रोका, इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से रोका, ठीक है. दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट कहां से आया? बोला लक्षद्वीप. कहां से आया? लक्षद्वीप. हाईएस्ट वोटर टर्नआउट 84%, ठीक है. फॉलोड बाय आसाम 81%, ठीक है. स्टेट में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट आया आसाम से, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट आया लक्षद्वीप से, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट आया लक्षद्वीप से. सबसे कम जो वोटर टर्नआउट आया दैट वाज इन बिहार विच इज 56.19%, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद मिजोरम, ठीक है. याद रहेगा दोस्तों. चलिए, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट. ओके, आगे बढ़ते दोस्तों. ये सब डेटा शायद आपको मदद करे, ठीक है. फिर ये आया नाता प्रथा. एनएचआरसी ने राजस्थान में चलने वाली ये नाता प्रथा को, है ना, क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करी, ठीक है ना. नाता प्रथा बोलते हैं इसको. दिस इज वेरी क्रूशियल. एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. दोस्तों, उसके करंट चेयरमैन कौन है? प्लीज मुझे ढूंढ के बताइए. एनएचआरसी इश्यूड अ नोटिस टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, एंड गुजरात ओवर अ प्रैक्टिस ऑफ नाता प्रथा. What happens in Nata Pratha? I'll explain. The girls in some communities of these states are sold either on a stamp paper or otherwise in the name of illegal or child marriage, mostly by their own family. तो होता क्या है नाता प्रथा में, है ना. देखिए दोस्तों, समाज में जो कस्टम्स क्रिएट करे जाते हैं वो समाज की एक डिमांड के ऊपर क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है. तो समाज में किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है ना, कैसी सिचुएशन क्रिएट होती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई विमेन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रॉब्लम में फंसी है, वीडो है ना, या उसके फैमिली में कोई है नहीं, या फैमिली बहुत गरीब है, या उसको शी इज अ डाइवोर्सी, ठीक है. तो उस सेंस में उस वुमेन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए. फैमिली को ऐसा लगता है कि वुमन को प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है, उसकी शादी करवा दो और उसका पति उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है. ये विचार था. और इसकी वजह से बहुत बार ये होता है कि ये वुमेन को बेचा जाता है, ठीक है ना. वुमेन को बेचा जाता है, ठीक है. बोलते हैं इसको नाता प्रथा बोलते हैं कि एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं. तो ये हस्बैंड, है ना, अगर मानो ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देगा, ठीक है, अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देगा, उसके सामने वो पैसा दे देगा और इसके साथ वो शादी कर देगा, ठीक है ना, इसके साथ वो शादी करेगा. दैट इज हाउ दी नाता प्रथा. इन अ वे दिस वॉज a roughly a system of live in relationship, जहां पे you can say शायद हस्बैंड को इस वाइफ के साथ अच्छा मतलब काम नहीं बन रहा है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है ना, या उसको पसंद नहीं है, या उनके बीच में प्यार नहीं रहा, या उनके बीच में रिस्पेक्ट नहीं रहा, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग. ही वांट्स टू लीव एंड ही फाइंड्स आउट देयर आर सर्टेन अदर पीपल अवेलेबल फॉर मैरिज एंड दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, ठीक है. सो इस नाता प्रथा के बारे में, है ना,
इसके इमोरल कंसिक्वेंसेस होते हैं और इस इमोरल कंसिक्वेंसेस की वजह से ऐसा सिस्टम होता है। बहुत बार इस औरत को वो एक से डाइवोर्स भी नहीं देता है, सिर्फ पैसा दे देता है, ठीक है। तो ये कस्टमरी पॉलीगामिक प्रैक्टिस है ना, ये चलता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कुछ कुछ कम्युनिटीज में ये प्रिवेलेंट है। और एनएचआरसी इस पर्टिकुलर चीज को रोकने की, उसके बारे में एक रिपोर्ट मांग रहा है और देख रहा है कि कैसे करे इसको, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज आ रही है रशिया की तरफ से। रशिया डिफेंड्स ओपेक प्लस ऑयल पैक्ट एंड सेज इट मे ट्वीक इफ नीडेड। नाउ व्हाट इज दिस ओपेक? क्विकली पहले समझते हैं ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1960 प्राइमरली बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। याद रहे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्टिंग अगर कोई कंट्री हो तो ये रहे आपके कंट्रीज। कभी भी इंटरव्यू में आपको इसको बोलने की जरूरत पड़े, आप इसको बोल सकते हो, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ठीक है। अब इसके अंदर धीरे धीरे कुछ और मेंबर भी इंक्लूडेड है, अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, गिनी, गाबोन एंड बहुत सारे। सो टोटल 13 कंट्रीज है। इन 13 कंट्रीज के साथ 2016 में ओपेक में कुछ और कंट्रीज भी इंक्लूड करे गए, विच आर नॉन ओपेक कंट्रीज बट दे आर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। सो दे इंक्लूड 13 मेंबर्स प्लस 10 नॉन मेंबर्स, है ना, विच इंक्लूड्स अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान, ठीक है। तो ये इंक्लूड करे गए, दैट इज ओपेक प्लस। अब ओपेक प्लस का जो करंट अग्रीमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑयल सप्लाई को और उसकी डिमांड को हम स्टेबलाइज करें ताकि एक मार्केट में सर्टेनिटी लेकर आए और उसके लिए जो जो भी एडजस्टमेंट करना पड़े वो हम करें। तो इन्होंने रिसेंटली बोला था कि जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस $80 से नीचे चली गई, ठीक है ना, मतलब प्राइस बहुत कम हो गई, तो ओपेक प्लस ग्रुप ऑफ कंट्री ने अग्री किया दैट दे विल रिड्यूस द ऑयल आउटपुट। तो वो ऑयल आउटपुट को कम करेंगे, है ना। कब तक करेंगे बोला? अगले 1 साल तक करेंगे, 2025। सो दिस प्राइस इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि अगर वो $80 के नीचे चली गई क्रूड ऑयल की प्राइस तो इन सभी कंट्रीज को अपना, है ना, पूरा मैनेजमेंट करना दिक्कत हो जाएगा। सो ओपेक प्लस हैज इंप्लीमेंटेड सच काइंड ऑफ आउटपुट कट सिंस 2022 और 2022 से लेकर अभी भी ये कट चल रहा है, विच मीन्स ये सप्लाई को जानबूझ के कम रख रहे हैं। समझना, सप्लाई को जानबूझ के कम रख रहे ताकि इसकी प्राइस ये लोग बढ़ा सके। ऐसे सिस्टम को नाम दिया जाता है कार्टेल फॉर्म कर रहे हैं। अब ये इलीगल सिस्टम है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ये एक एसोसिएशन बनाकर ये काम तो कर ही लेते हैं, ठीक है। ओपेक प्लस इज प्रिपेयर्ड टू रीच और रिएक्ट क्विकली टू मार्केट अनसर्टेनिटीज, ऐसा उन्होंने बोल दिया और कहा कि यस वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज राइट, हम थोड़ा ट्विकिंग करेंगे, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। इज दैट वेरी क्लियर? याद रहेगा सबको ओपेक क्या है, ओपेक प्लस क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस लिए फॉर्म हुए थे, उनका पर्पस क्या है और अभी क्या बात चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सुनो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। एक बड़ी मज़ेदार सी न्यूज़ आई थी, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा टेक्निकल मैं आपको समझा दूं क्या बात हो रही थी, ठीक है दोस्तों। रिसेंटली वेरियस इलेक्शंस वर अनाउंस्ड। इंडिया का इलेक्शन अनाउंसमेंट हो गया, मैक्सिको का इलेक्शन अनाउंस हो गया। क्लॉडिया करके एक लेडी है, दैट इज मैक्सिको की पहली फीमेल से प्रेसिडेंट वहां पे एस्टैब्लिश हुई। सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप अकर्ड इन मैक्सिको की करेंसी। मैक्सिको की करेंसी कौन सी है? मैक्सिको की करेंसी है पीसो, ठीक है। सो देयर वाज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन करेंसी आफ्टर द लैंडस्लाइड इलेक्शन रिजल्ट which impacted foreign exchange market. And not only the Mexico but Hungary, तुर्की है, सब जगह पे ये इम्पैक्ट हुआ। इन्वेस्टर्स आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट अनवाइंडिंग ऑफ पॉपुलर कैरी ट्रेड्स। नाउ व्हाट इज कैरी ट्रेड? दोस्तों ये समझना, व्हाट यू मीन बाय कैरी ट्रेड्स। कैरी ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? कैरी ट्रेड का मतलब होता है कि आप लो इंटरेस्ट देने वाली
जो करेंसीज है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है, ठीक है, जैसे जापान, स्विस फ्रांक, है ना, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम चलता है, वो आप बोरो करो, वो पैसा लेकर आप इन्वेस्ट करो ऐसे करेंसीज में जो हाई इंटरेस्ट देती है, मैक्सिकन पीसो, यूएस डॉलर, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का गैप है उसकी वजह से आप पैसा कमाएंगे। समझ आया? आपने लोन ली जापान से, आपने लोन ली वहाँ जापान 100 रुपये की, जस्ट इमेजिन 100 रुपये की, उसके ऊपर आपको वहाँ पे 1% का इंटरेस्ट पे करना है। वो पैसा लेकर आपने ये मैक्सिको में आपने से मनी को डिपॉजिट करा, दे गिव यू रिटर्न ऑफ 8%, ठीक है। सो इन अ वे यू आर गेनिंग अ बेनिफिट ऑफ 7%। दिस इज नोन एज कैरी ट्रेड। मैक्सिकन पेसो, है ना, काफ़ी गिरा, 4.4% जितना गिरा येन के सामने, विच वॉज द बिगेस्ट डेली डिक्लाइन again say compared to the COVID-19 crisis. So this indicates that people are not going for carry trade. वो उसको अपने आप को इसमें से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है ना, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं? वही, है ना, ये बोले अनवाइंडिंग ऑफ ह्यूजली पॉपुलर करेंसी ट्रेड रॉक्स द मार्केट। ये लोग इस तरीके की चीज़ों में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो मैक्सिकन पीसो में जो पैसे डाले और अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा वो शायद इतना बेनिफिशियल नहीं आए। कुछ क्विकली फटाफट न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। ईरान की पुलिस ने 30 लोगों को अरेस्ट कर दिया ऑन अ सस्पेक्शन, ऑन अ दे वर सस्पेक्टिंग दैट दे वर बिलोंगिंग टू सैटानिक नेटवर्क, है ना, सैटानिस्ट नेटवर्क है उनका, ठीक है। और उनके पास अल्कोहलिक ड्रिंक पाए गए, ठीक है। वैसा अ टोटल ऑफ 18 मैन एंड 12 वुमेन वर अरेस्टेड एट गैदरिंग इन द नॉर्दर्न प्रोविंस इन मजानदरन, दैट इज व्हाट ईरान सेड, ठीक है। और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। आपको याद होगा हमने बात करी थी सलमान रश्दी के बारे में, सैटानिक वर्सेस आयतुल्ला खोमेनी ने जो फतवा जाहिर किया था उसके बारे में, आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने again से कहा कि ही इज सपोर्टिंग दैट सीरियस क्रिमिनल्स शुड बी डिपोर्टेड इवन इफ दे कम फ्रॉम सीरिया और अफगानिस्तान। आप मतलब again से अगर उन्होंने असाइलम मांगा होगा, पर अगर उन्होंने हमारे कंट्री में सीरियस क्राइम किया है, वी आर रेडी टू डिपोर्ट देम। दोस्तों, डिपोर्टेशन इश्यूज आर वेरी क्रूशियल। आपने देखा होगा अमेरिका ने भी अपना एक नया, है ना, रूल लेकर आए थे जून 5 को, याद है हमने करंट अफेयर के सेशन में बात करी थी लास्ट, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइए क्या बात करी थी, ये पता होना चाहिए। दोस्तों, हमने आपके साथ बात करी थी सुनीता विलियम्स कल, है ना, सुनीता विलियम्स अपनी 3rd स्पेस ट्रिप लगा रही है। कहाँ से लगाई उन्होंने ये स्पेस ट्रिप, है ना, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलास 5 रॉकेट है। क्या नाम है इसका? एटलास 5 का ये रॉकेट है। और ये रॉकेट बनाया किसने? बोइंग नाम की कंपनी। सो दिस इज पहली प्राइवेट कंपनी जिसका ये से व्हीकल जा रहा है। CST 1000 स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। पहली तो नहीं है, सॉरी, पहली तो भैया अपनी, है ना, इलॉन मस्क वाली की है, फाल्कन करके बोलते हैं उसको। उसके स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? फाल्कन, ठीक है। और ये बोइंग का CST 100 स्टारलाइनर। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो सुनीता विलियम का ये 3रा स्पेस ट्रिप है, ठीक है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात हुई। आज का सेशन बड़ा मज़ेदार रहा, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस करी। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्नड इट। आपको मज़ा आया होगा। आपके कोई सजेशन है, क्विकली मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेश्चंस एंड क्वेरीज एंड आई विल अपडेट ऑन योर डिमांड। ओके, ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर जर्नी, एंजॉय योर लाइफ फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन विथ प्रो टैलेंट। ऑल द बेस्ट।